required immediate attention. I am proud to be a member and leading the Punjab Police team today. मैं 1986 बैच ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਤਵਾਦ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸੀ। It was a major challenge we were facing and we are proud to say ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ successfully ਆਤਵਾਦ ओवरकम किया, चैलेंज ओवरकम किया। अज भी वही पंजाब पुलिस है। साडे अफसर, साडे जवान बहुत ही वधिया आउटस्टैंडिंग ने सारे। मैनूं सारे नाल काम करने का मौका मिलिया है। अज फिर कुछ चैलेंज आ गए ने साडे सामने जिहड़े कि वध के उदों सिर्फ आतवाद कल्ले सी, आज आतवाद हैगा, माफिया हैगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम along with narcotics, drugs. So this is a very dangerous cocktail of narco, organized crime, terrorism. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। But I'm proud to say that the Punjab police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the centre, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ unravel ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering कि की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना powerful blast, what is the reason behind it. The main thing, it turned out finally, मौके ते सानू काफ़ी उत्थे leads मिले ने। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. मौके का मुलाजा करके मैं आप गया सी, माननीय साडे सीएम साहब भी गए सी, होम मिनिस्टर साहब भी गए सी, अपने अफसरां नाल, फोरेंसिक साइंस टीम नाल जायजा करके सानू ये लग्या कि जिहड़ा डिसीज्ड है, he was carrying the explosive, but that was an initial assessment. जिवें जिवें साडी इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी गई, सानू यकीन हो गया कि यस, दैट was the correct picture, what actually happened. What is important is within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act. The STF, under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. उस वेले ये थाना सदर दा मुंशी हुंदा सी। 385 ग्राम हेरोइन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ हेरोइन ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ट्रायल चल रहे सी, बल्कि 24 तरीक ट्रायल सी ते अगला तरीक 3/2/2022 सी फरवरी च। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट प्रॉबली जेल दे विच इहदे जिन्हां नाल तालमेल होया, ही ट्रांजिशनड फ्रॉम जस्ट नारकोटिक्स टू माफिया टू ड्रग्स। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन जिहड़ा सामने साडे आया।
This is going to be a very major challenge for us. But however, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of the expediency ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ and from abroad with Khalistani elements, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ details ਆਉਣਗੇ, we will be providing them to you. But I must congratulate my entire team of Punjab Police for this major achievement. ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, in the presence of the sanctum sanctorum, a very unfortunate incident. We are all aware. We registered a case of sacrilege in that. कि सचखंड 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, we have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar, and they will be giving us the report shortly. We are still not, hale tak deceased identify nahi hoya, but we are in the process of doing that. We are studying the CCTV cameras, the images, and whatever other inputs we are getting, so we are in the process of doing that. A third incident which took place was at Kapurthala, where एक मकान सी, ग्रंथी सी, पाठी सी, उन्हें अपने मकान 'ਚ प्राइवेट गुरु साहब की प्रकाश की सी. So he claimed it's a gurdwara, but it was not a regular gurdwara, private gurdwara साहब 'ਚ रखिया सी. उत्थे भी यही एलिगेशन आया कि बेदबी हुई है गुरु साहब नाल, पर जिवें we registered a case of sacrilege in Kapurthala also, पर जिवें जिवें साडी तफ्तीश वधदी गई, it turned out that it was not a case of sacrilege. लगदा कि चोरी करन दे नीयत नाल वो शख्स अंदर गया सी. उस तो बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, which cannot be tolerated. And this is something I would like, एक गल ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਵੇ. Please do not take law into your hands. ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. We have now registered a case after proper investigation. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ. ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, and the main accused has been arrested. And the law is taking, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਬੰਦੇ, they are being identified and law is going to take its own course. So these were the immediate 3 incidents which we were faced with. The main challenge lying ahead of us, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ, the assembly elections. ਸਾਡੇ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ फ्री एंड फेयर इलैक्शंस कराए जान, कोई भी भय दा, कोई भी डर दी फीलिंग ना होए. इहदे वास्ते I have had a detailed conference with my commissioners along with my senior officers at the headquarters ch, all SSPs, range DIGs, IGs. Very clear instructions have been passed that the police has to get active. The presence of the police has to be seen. इस करके to create a secure environment, लोकां दे दिमाग 'ਚ एक सिक्योरिटी ਦੀ भावना आ जावे. इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो हट के ਅਸੀਂ सिक्योर एनवायरनमेंट ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
सो आई हैव डायरेक्टेड जिन्ना हो सके इंडिविजुअल सिक्योरिटी ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ क्योंकि इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ सिक्योर एनवायरनमेंट। सिक्योर एनवायरनमेंट ताई होएगा जिस देखिए, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षित माहौल होगा, लेकिन लुधियाना ब्लास्ट केस से जुड़े तमाम अपडेट उन्होंने मीडिया के सामने रखे। और इस मामले में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि गगनदीप, जिस आरोपी ने वहां पर बम लगाया और बम लगाते वक्त धमाके में वो खुद भी मारा गया, पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था। नार्कोटिक्स के मामले में, ड्रग्स के मामले में 2 साल जेल में रहा और जेल में रहने के दौरान वो खालिस्तान के संपर्क में आया, खालिस्तानियों के संपर्क में आया, साथ ही साथ नार्कोटिक्स का जो माफिया है उसके संपर्क में आया और इंटरनेशनल संपर्क भी उसके बने ड्रग तस्करों के साथ। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और जिस वक्त ये मुंशी था सदर थाने में, उस वक्त इसके पास से करीब 300 ग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई थी, जिसके बाद इसको बर्खास्त किया गया था। मामला चल रहा था, 2 साल ये जेल में भी रहा। इसकी कोशिश थी कि कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है उसको उड़ा दिया जाए बम धमाके से और उसके बाद इसके खिलाफ सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। और इसी धमाके को अंजाम देने के दौरान ये शख्स खुद भी मारा गया। गगनदीप के घर पर पुलिस पहुंची, जहां पर यह धमाका हुआ, वहां से डोंगल मिला, सिम कार्ड्स मिले और फोन मिला और उनके जरिए पुलिस गगनदीप के घर तक पहुंची। वहां पर भी छानबीन की जा रही है। गगनदीप के भाई को से पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गगनदीप खालिस्तानियों के संपर्क में था, गगनदीप इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के संपर्क में था। यह बहुत चौंकाने वाली जानकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने इस वक्त दी है, जिसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी। इस धमाके के बाद से एक एक करके जिस तरह से जानकारी सामने आना शुरू हुई, सीधा सीधा ड्रग तस्करों के साथ इसका तार जुड़ते हुए दिख रहे थे, खालिस्तान के साथ इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे थे। और अब खुद पंजाब पुलिस के डीजीपी ने मीडिया के सामने ये बात रखी है कि 2 साल जेल में रहने के दौरान गगनदीप खालिस्तानियों के संपर्क में आया, गगनदीप इंटरनेशनल ड्रग माफिया के संपर्क में भी आया और खास करके पंजाब में जो ड्रग माफिया है उसके संपर्क में आया। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर, बड़ी बात कही है पंजाब पुलिस के डीजीपी ने। देखिए, ये नेक्सस है नार्को टेररिज्म का और जो भू माफिया और जो पंजाब में सरगर्म ड्रग पैडलर्स हैं उनका नेटवर्क बताया जा रहा है। और जैसा आदर्श हम सुबह बात कर रहे थे कि लुधियाना जेल एक मेन सेंटर है जहां पर ये प्लानिंग हुई थी, वहां पर जो बाकी के लोग बंद हैं और जिनके ऊपर एक्सप्लोसिव के ड्रग्स के केस हैं, उन लोगों के साथ मिलकर कैसे एक्सप्लोसिव आना है, कहां से एक्सप्लोसिव आना है, इसका मास्टरमाइंड कौन था और किन किन लोगों ने जेल में इस बात की प्लानिंग की थी। अब इस पर पुलिस काम कर रही है कि आखिर इन लोगों ने अगर कोर्ट रूम को उड़ाने की साजिश रची तो इनको एक्सप्लोसिव किसने मुहैया कराया। क्या जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ही खालिस्तानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोसिव मुहैया करवाया और उनको लग रहा था कि गगनदीप सिंह इस काम को जमानत मिलते ही कर सकता है, इसलिए जेल में ये सब साजिश रची गई। अब कुल मिलाकर मास्टरमाइंड और एक्सप्लोसिव सप्लाई करने वाले पर निर्भर है पुलिस की जांच, उस तरफ अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये तो पता लग ही गया है कि बर्खास्त हवलदार ने इस घटना को अंजाम दिया। और जब वो फिक्स कर रहा था इस पूरे बॉम्ब को कोर्ट रूम को उड़ाने के लिए, उस दौरान उसका ये फिक्स करते हुए ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं होगा और उसी में उसका शरीर उड़ गया। जैसा एबीपी न्यूज ने बताया था कि टैटू से सबसे अहम सुराग लगा, तो वो टैटू ही डीजीपी ने जिक्र किया कि हमें मौके पर जो एक बाजू मिला था उस पर टैटू बना हुआ था। तीसरी बात, 385 ग्राम ड्रग्स के साथ इसको एसटीएफ पंजाब ने गिरफ्तार किया था। 11 अगस्त 2019 को गगनदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। ये खन्ना के एक पुलिस स्टेशन में मुंशी का काम करता था, इस पर शक था, इसको ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, फिर 2 साल ये जेल में रहा। और उस जेल में रहते हुए ही, क्योंकि अक्सर जेल में ये प्लानिंग हो जाती है कि जिसको भी जमानत मिलेगी वो क्या काम करेगा, वो क्या मैसेज देगा बाहर जाके, किसको मिलेगा, तो इसी के तहत गगनदीप सिंह को एक मॉड्यूल बनाया गया, उसकी जमानत हुई और 24 दिसंबर को उसकी कोर्ट में तारीख थी, उसी लुधियाना कोर्ट में, इसलिए उसने उससे पहले कोर्ट रूम को उड़ाने की साजिश थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक्सप्लोसिव आया कब और इसको किसने रिसीव किया, गगन तक ये कैसे पहुंचा और गगनदीप ने इसमें डेटोनेटर या सर्किट के लिए सामान कहां से लिया। इन तमाम चीजों को बेनकाब करने के लिए और इस नेटवर्क में बाकी कौन कौन लोग शामिल हैं, अब पुलिस का अगला स्टेप उस जांच पर है कि गगन के साथी कौन कौन थे, मास्टरमाइंड कौन कौन है और जेल का कौन कौन सा आदमी है जिसके केसेस लुधियाना की इसी कोर्ट में चल रहे थे और उनको भी इस कोर्ट रूम से उड़ने का फायदा मिलता, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है।
जोगिंदर, मुझे एक बात बताइए, डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रमुख बातें कही, जिन पर आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं और काफी अहम जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से दो बातें मैं जानना चाहता हूं। एक, पंजाब की राजनीति में ड्रग्स की गूंज हम सुन रहे हैं, तो सवाल यह है कि ड्रग्स माफिया का रैकेट जेल हो या दूसरी जगह हो, सब जगह पंजाब में अभी भी नीचे जड़ों तक पहुंच चुका है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर पाए हैं। एक, और दूसरा, खालिस्तान के जो लोग हैं, खालिस्तानियों का जो नेटवर्क है, वो पंजाब की जेलों में इतना फैला हुआ है कि वहीं प्लानिंग कर सकते हैं, वहीं से तमाम चीजें मुहैया करवा सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा है अंदर खाने। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों का उम्र के लिहाज से अब नेटवर्क कमजोर हो चुका है। पहली बात तो ये है। अब उनको ऐसे मॉड्यूल चाहिए पंजाब में जो उनके इशारे पर आईएसआई के कहने पर काम करवा सके। खालिस्तानी नेटवर्क तो रहा नहीं अब, तो वो जो काम है अपने मॉड्यूल का या आगे जो काम जिनसे एग्जीक्यूशन करवानी है, वो आईएसआई के कहने पर खालिस्तानी गैंगस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक गैंगस्टर है, महाराष्ट्र का है, सिख है, नौजवान है, कई वारदातों में इन्वॉल्व है, हरविंदर सिंह रिंडा। वो पहले यहाँ पर वारदातें करता रहा, लेकिन अब वो पाकिस्तान भाग गया है। आईएसआई क्या करती है, जो इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क में यंग लड़के काम करते हैं, उनको खालिस्तानियों के इशारे पर इस्तेमाल करने के लिए इन गैंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ती है, और खालिस्तानी उन गैंगस्टर की ड्यूटी लगाते हैं, काम क्या करना है, उनको सामान क्या मिलेगा, और वो फिर अपने जो नेटवर्क है पंजाब में, उसके जरिए उसको एग्जीक्यूशन करवाते हैं। इस बात का खुलासा तब भी हुआ था जब बलविंदर सिंह संधू की हत्या की गई थी, जो टेररिज्म में आतंकवादियों से लोहा लेते थे। उनको जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया था। तरन तारण की उनके घर पे घुसकर 2 मॉड्यूल, छोटे छोटे लड़के थे 19-20 साल के, उन्होंने जाकर हत्या कर दी थी। तो वो इशारा भी विदेश से खालिस्तानियों का हुआ था। सेम उसी तरह ये नेटवर्क है कि आईएसआई खालिस्तानियों की ड्यूटी लगाती है, जो 4-5 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो खालिस्तानी आगे गैंगस्टर के जरिए, उनके गुटों के जरिए इस चीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं पंजाब में। तो इसलिए ये नेटवर्क है, और यही लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। साथ में ही अगर ड्रग्स के बदले अगर आरडीएक्स भेजना है, तो वो भेजना भी उसी मॉड्यूल के जरिए आसान रहता है। तो ये एक नेटवर्क काम कर रहा है पंजाब में बड़े स्तर पर। जी, आप रहे जगविंदर हमारे साथ। देखिए जगविंदर, बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ठीक है, गगनदीप मारा गया उस धमाके के दौरान, लेकिन वो धमाका करने के लिए जो तमाम चीजें, वो चाहे आरडीएक्स हो, वो चाहे डेटोनेटर हो, वो तमाम चीजें कैसे आई, और खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर क्या कुछ कहा पंजाब के डीजीपी ने, एक बार वो भी आपको पहले सुनवा देते हैं। It is expected that most probably जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ. This is going to be a very major challenge for us. But however, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਵਿਥ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ये उभर के आया सामने। तो पंजाब के डीजीपी को सुन रहे थे आप, जो उन्होंने तमाम जानकारी दे रहे थे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर, बहुत अहम बात डीजीपी ने कही है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने। सवाल यह है कि अब तो चुनाव भी सामने है और हम इस तरह का खुलासा भी देख रहे हैं, अब जो बातें निकल कर आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस को बहुत सतर्क रहना होगा और जो इंटेल्स है उनको और मजबूत करना होगा, तभी हम शायद सुरक्षित रह पाएंगे इस तरीके से। मुझे लगता है कि पंजाब की जेलों में जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग्स हो रही हैं अब तक, जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसकी प्लानिंग किसी ना किसी जेल में हुई होगी। चाहे किसी की हत्या करवाई गई हो, या फिर फिरौती ली गई हो, या फिर बम धमाके करवाए गए हो, या फिर जो बड़ी ड्रग्स की सप्लाई चेन्स हैं उनको भी जेल में बैठे लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, पंजाब की जेलों में फोन फ्री मिल रहे हैं। एक तरह से जो मर्जी चाहे वो पैसा देके फोन ले सकता है। सबसे पहले उसको रोकना होगा। क्यों जैमर्स नहीं लगाए गए? और खास बात यह है कि होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा के पास होम डिपार्टमेंट है, उन्हीं के पास जेल डिपार्टमेंट भी है। लेकिन एक बार वो खुद कह रहे थे कि मैं भी हार गया इन चीजों से। सवाल ये उठता है, सीआरपीएफ लगाने की बात होती है, पंजाब पुलिस से ये जिम्मा लेने की बात चलती है, लेकिन जेलों से फोन फ्री इस तरह से चल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनको कोई डर ही नहीं है, पैसा देकर फोन लिए जाते हैं। तीसरा, हर आदमी जो भी गैंगस्टर या फिर ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ आदमी जेल में बैठा है, उसके धंधे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सवाल ये है कि एसटीएफ को चाहिए ये कि जेलों से जो भी नेटवर्क चल रहा है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कम्युनिकेशन कटेगा तभी अपराध रुकेगा। ABP News,
आपको रखे आगे।